सर सामने। फोटो बोलेगा था, चले जाएंगे। सर सामने। मैं इस तकनीकी सत्र के सेशन मॉडरेटर प्रोफेसर राम सागर मिश्रा सर को सौंपता हूं। International Conference on the Vedic Jurisprudence and its impact on the contemporary world. So, as mentioned by my previous moderator, that we have 5 very distinguished speakers in this session who are going to speak on the Nyaya Shastra in Vedic tradition and Western ideas and justice. So let me thank Professor Upendra Tripathi for giving me this opportunity and inviting me to join this very important session onto the Vedic tradition and Western ideas of justice. Because since in the morning we are hearing so many very interesting talks, because I am from the science background, I am chemistry professor in Jawaharlal Nehru University, but I am finding these sessions are so interesting, so very much interesting, where like in the morning session, Justice Chauhan was saying that in the early days in Indian system, in the Nyaya Vyavastha, it was something like that. There was no code, but people were still, वो प्रायश्चित करते थे, ठीक? If they commit any sin, उसके लिए वो प्रायश्चित करते थे। यानी कहीं न कहीं ऐसी सिस्टम था हमारे यहाँ जो कि न्याय की तरफ हमें प्रेरित करता था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए I would like to request the first speaker of this session, Professor P.K. Mukhopadhyay. He is ex-head Department of Philosophy in one of the very prestigious university of this country, Jadavpur University, Kolkata. So I would like to request Professor P.K. Mukhopadhyay for... Yeah, so, and I request to the organizer, please provide the mic to the speaker over there, otherwise I can bring it, this one. Because of the paucity of time and also my limitations, various limitations, I will try to say only a few words because I know that we are running behind the schedule and much behind it. So I would like to speak on this topic, dialogue between the two traditions on the idea of justice. If you carefully look at it, all the terms I have taken from either the theme of the conference or the theme of this session. Only one thing I added, and that is legal. That is not there. So my topic is dialogue between two traditions. These two traditions are not there. On the idea of legal justice. Justice can be of other types also, as I will tell you. So justice need not always be legal justice, but here, in the context of jurisprudence, of course it is legal justice. So this point
I have added, otherwise all the terms have been taken from the themes already announced. Now how I relate them? The first point to remember is the terminology has to be made clear, otherwise we cannot follow it rightly. The terminology is jurisprudence. In what sense we use the word jurisprudence? Time is short, the word is very common, known. So I will very briefly tell you that jurisprudence is said to be philosophy or theory of knowledge, theory about law. But though this theory is theory about law, it also discusses and has to discuss the distinction between judiciable and non-judiciable laws or behavior. So this is therefore jurisprudence which deals with law, and one of the most important points to discuss in jurisprudence is the concept of law, the source of law, the scope of law, and many other things. So this is for the present the idea of jurisprudence. So far as the other things are concerned, say for example justice. What should be the meaning of justice? As I already told you, justice can be legal as also moral. So ethico-moral justice, and we have some corresponding expressions in our tradition, and also legal justice. Legal justice in our country does not mean just nyaya. For nyaya has many other senses and many other different types of nyaya are there. Basically, if we use the expression nyaya without qualification, it means Gautamiya nyaya or Annikshiki nyaya. This Annikshiki nyaya or Gautamiya nyaya is not the nyaya that we are discussing in the context of jurisprudence or law. We have a term, different term for it, and that term is Vyavahara. Vyavahara, if you so like, you can also add Vyavaharo nyaya, but simply nyaya is not what corresponds to jurisprudence. So therefore we have now here the Vyavaharo nyaya or Vyavahara. And the Vyavaharo has been defined in this way. In Mitakshara on Jaggavalka, Vyavahara has been defined Onno Virodheno Satma Sambandhito Ekathanam Vyavahara. Suppose someone says about a property, about a piece of land, this is mine. If someone else contests it and says, no, it is mine, then it is a case of Vyavahara. So Vyavahara means litigation, conflict of claims and counterclaims about a certain property. This is the scope of Vyavahara. So in this Vyavahara or Vyavaharo nyaya, that should be understood by the expression, this judicial nyaya. Now the other word is the corresponding word is law, and the standard or legal standard. What do we mean by that? So we mean that there is another word for it. We are discussing justice and just. In the legal sense also, justice and just do say for a person is just, an action is just. Justice is the property of all just actors. Our traditional terms for this is vidhi and vaidha. So just is vaidha and justice is vidhi or vidhi sammato. Vidhis can be of different types.
And these different types of vidhis are dealt in with different shastras. For example, Vyavahara vidhi is the subject matter of Vyavahara Shastra. Dharma vidhi, subject of Dharma Shastra. In this way, different vidhis are discussed in different shastras. Similarly, Vada vidhi is discussed in Nyaya Shastra. So there are different senses of the vidhi, and these are to be clarified first, otherwise we may not understand what is the proper difficulties. So far, therefore, the point of discussion, or what I want to discuss is this, that the dialogue between two systems of law and application of law in the context of determining the legal appropriateness, legal fairness, and this has to be distinguished from other sorts of fairnesses. So, when we say vidhi or vaidha, we always have to refer to in which context and in context of which shastra we are speaking of it. Are we speaking of it in the context of dharma vidhi, dharma, or sadachar? Sadachar and dharma is the same thing, and in many smritis, this distinction is the most important distinction between achar and vyavahara. Achar means sadachar, and that is dharma, and vyavahara means the litigation or the law. So this is the difference. Now the point is that if vidhis are part of dharma as well as a part of law, that is vyavahara, occasionally the vidhis can conflict also. And both these apply to man and his situation. Then in case the two vidhis conflict, then how to resolve it? We have rather moved away from how to judge the action of a man in the context of litigation to how to decide the principles and provisions as to whether the provision is just or not. There is elaborate discussions on this, and very definite answers have been given, and that is this, that there is a priority and hierarchy of the vidhis. If there is a conflict between one vyavahara vidhi and the other dharma vidhi, then dharma vidhi will prevail over the vyavahara vidhi. The vyavahara comes under dharma. So that which comes under jurisprudence does also necessarily come under dharma also. So the system of law is not acceptable unless it conforms to the prevalent system of dharma or sadachar. So there is one point. But the question is, if two rather non-dharma vidhi, that is vyavahara vidhi conflict, then how to decide it? This is another question that is being discussed in our jurisprudence or vyavahara shastra. And the answer is that there we have to apply our own judgment. Jukti or nyaya. With the help of jukti or nyaya, so this shows the rational character of the type of jurisprudence we did have at that time. So we have to discuss it. To give an example, in the Srimad Bhagavad Gita, Arjuna was in trouble as to whether to engage in the battle or not. And he began with giving so many arguments why he should not fight. At one point he said, Papameva srayadashman hattaitan atutainam. And this atutai bodh is a matter of Arthashastra, and it is not a matter of Dharma Shastra. Whereas ma hingshat sarva bhutani, it is a matter of Dharma Shastra. So in this context, which should prevail? Should hingsha prevail or should not hingsha prevail? The provision of Arthashastra is, if there is some predator comes threatening your life, then without any discussion,
without any examination or any hesitation, immediately kill that Adurai. That is Arthashastra. But the other Arthashastra has to be limited because there is other Shastra, and that is Dharma Shastra, which said no Hinsha is permitted. So this is the way where Dharma Shastra prevails over the Arthashastra belief. But where it is the only Arthashastra, two Vidhis are in conflict, then we have to apply our judgment or Nyaya. So perhaps for this reason, some people think that Nyaya Shastra is the corresponds to jurisprudence, but that's not true. It is Vyavahar Shastra, and simply Nyaya means Gautamiya Nyaya, which is called logic or something of the kind. So what is exactly the difference between these two types of Nyaya? At least three important differences are there. The scope of Nyaya Shastra and the scope of Vyavahar Shastra are different. That is, the legal Shastra or jurisprudence and the scope of Nyaya, which is called a type of darshan, are different. In the Nyaya Shastra, scope is limited in terms of the topics it discusses. It discusses, as Gautama, the founder of this school, enumerated, there are 16 Padarthas, main topics of discussion in the Nyaya Shastra. Whereas Manu has enumerated that in the Vyavahar Shastra, there are 28 main objects of discussion, of which the first is Rinodan. All that leads to litigation. And this 28 has been in Narada Smriti increased into 100 leads, and it has been suggested there can be many more. So the scope is altogether different. Here the scope is limited, but not only limited, different also. But there is another also difference, and the difference is in the nature. Nyaya Darshan is an adhyatmik vidya. It is about the spirituality, even about the moksha. Vatsang has clearly said it, that it is Adhyatma Vidya, but also made a reservation. It is not Matra Adhyatma Vidya as the Vedanta or Upanishadis. Three is Matra Adhyatma Vidya, Nyaya Adhyatma Vidya with a difference. It is also a rational discourse. So it is not Matra Adhyatma Vidya, but Adhyatma Vidya nonetheless. And the third important point is the role of the two, the Vyavahara Shastra and Nyaya Shastra. The role of Nyaya Shastra is, it is subsidiary to, or it is an aid to. Its role is to help understand other vishayas. So Nyaya is Pradipa Sarva Shastranam. So it helps us understanding all the different shastras. And in this particular case, how Nyaya Shastra helps the Vyavahara Shastra and its application or practice. Nyaya Shastra can practice it in two ways. On the one hand, Nyaya Shastra provides us with a system of argumentation and reasoning. So when two different parties are contesting each other, then what should be the methodology to convince another or to win over him? So it is said that Tattva Nirnay अथवा विजय दो ही न्याय शास्त्र का उपयोग है. So in the litigation, on the one hand we want to establish the truth by reasoning, and in the matter of establishing the truth of Tattva Nirnay, Nyaya provides the means how Tattva Nirnay is possible. And it says, Vimishya Paksha Prativakshabhyam Arthavadharanam Nirnayam. So there is a method stated there. So it can help even a practicing judicial man, practicing lawyer, how to establish the truth in the context where there is many doubts, who is right and who is not. So this is one. But there is in another also, in addition to helping deciding this, the Nyaya Shastra also help it another way. Nyaya Shastra's contribution to
Vyavahara Shastra is not just by way of helping it with the method of resolving the contesting parties, the contest, the lawyers of one party and the lawyers of other party, they contest with each other. But how to resolve for the judge which is the truth? Then he is to have some knowledge of the method which has been enunciated, elaborated in the Nyaya Shastra. But in addition to doing that, Nyaya Shastra has also richly contributed to the Vyavahara Shastra. And how that is done? On the themes of Nyaya, on the very pertinent concepts of jurisprudence, some Nuyayikos have written vast tracts. So we should not simply remember that Vyavahara Shastra is only confined in the Samhitas. No. Apart from the Samhitas, there are many other commentaries also, and even in the Nyaya Shastra, many such people have contributed. And since in this particular center, the jurisprudence is getting so much of attention, I would suggest, if they have already taken note of it, some of the very important contributions the Nuyayikos made in the theory of Nyaya, and one or two such I remember, particularly one is Satto Janako Nyaya. There is Gadadhar Bhattacharya has written, in his name it goes in Gadadhar Bhattacharya's name, whether he has done it or not, I do not know. Satto Janakata Bad. On these two very important distinctions and tracts have been written. That is, how, say for example, if father has died and his property is to be bequeathed to his sons and daughters and all that sort of thing. The idea is this, that the ownership was with the father. After the death of the father, does that ownership vanishes, destroyed, and ownership is created in others? And this ownership is created, then in which way the ownership is created and distributed? So one single ownership is distributed among many other people, and in which way, which would be the Nyaya and principles, that has been discussed. Very beautiful and very painstaking discussion is there. So, and there are other also tracts which are very rational. Say for example, Vyavaharo Mayuko. That is a very important text. So these are the three main ways in which Nyaya Shastra, Mani Gautamiya Nyaya, can be of help. But though it is helpful, it is distinct from Vyavahara Shastra. It is not Nyaya Shastra, so we should either call the jurisprudence Vyavahara Shastra or Vyavahara Nyaya Shastra, but not simply Nyaya Shastra. Having said that, by way of clarifications, then the question is now, I should be very brief, so time is long. The point is that what is to be done about the two traditions? And these two traditions of Nyaya, in the sense of jurisprudence. One is said here, the Vaidika Nyaya, the Vaidika Vyavahara Shastra, and Western jurisprudence. Take us for granted for the moment that this distinction holds. One is Vedic jurisprudence and another is Western jurisprudence. For the moment, let us take that this holds. Then what will be the major difference? The major difference is this Western jurisprudence we call, though it has also a legacy from the time of the Greeks, still more or less this jurisprudence, Western jurisprudence, is basically modern European jurisprudence. This modern European jurisprudence is rather is characterized by a few conceptions. One of these is this: the source of law and the effect of law
these are two very important points of jurisdiction to decide. In the Western conception of law, the authority and the source of law rests with the society. And this society, or the people living in a society, they not only create law, they are the authority of law, supporting law, and the basis is majority agreement. That is their way. But this idea was not in the Indian jurisprudence or Indian Vyavahara Shastra. It is not the society. For the reason is this, that society depends on law and not law on the society. That is our provision. And this is a common knowledge till the time of the early 19th century. That is during the independence movement. There is a very big issue being fought by very many people of that time. Say for example Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyay, who is the composer of Vande Mataram, Mahatma Gandhi. What was the trouble going on there? The trouble going on there was that there are two groups of revolutionaries. One was the militant group and another was a pacifist group. So they were concerning what path is the right path. Should we take the pacifist path or should we take the militant path? Those militant revolutionaries, they were again and again quoting the Gita, and obviously wrongly, and that is this Nishkama Karma. That is not actually a case of Nishkama Karma, but anyway, every revolution used to swear by Gita. Bhagavad Gita was the very important text for them, they lived by it. But then, according to the Western tradition, the society determines the law. Here, those who are pacifists, they are saying that actually society is not prior, society is not the foundation. Our society itself is Dharma society. Dharma provides the very foundation of Indian society. So therefore, this Dharma includes therefore the bidhis that should not come from the society. Society does not support it, but this Dharma supports the Dharma. So this conversion of the view, that is very important way of differentiating the Vedic jurisprudence from the modern Western jurisprudence is one particular important point. So, apart from this, otherwise the things they are the same, that we want to have a society which will be just and impartial. So we say that in the Western tradition, everyone is the same, equal in the eyes of the law. Meaning thereby, everyone is expected to follow the law and not violate it. And then only in this sense, according to the law, either a person is wrongdoer or a person is not wrongdoer. So from this division of man in our society will be different, because we do not go only by legal principles but also by dharma principles, and that is moral truth. Morally just people, they actually were the authority behind this law. Jurisprudence has for its basis, laws are created and supported not by any person on the basis of democracy as we understand it, but it's a democracy with a difference. Only well-versed, knowledgeable, man of character, they would create Parishad, Dharma Parishad. They actually are the final authority in deciding and dispensing both the Vyavahara law and also of Dharma Bidhis. So these are therefore difference. But now I come to the other two other points only. One is that now these two traditions that we have been speaking about, two traditions of jurisprudence, are there really two traditions of jurisprudence?
in India now. Since at least from 1776 onward, or downward, hardly there is any true system of jurisprudence in India. For what jurisprudence prevails in India now is basically the Western jurisprudence amalgamated into our ways. For since 1776, when the Gentoo law was collected, though it was collected from the Narada Samhita, Manu Samhita basically, but then all other laws that prevail is basically the British law. For at that time what happened is that though the laws were collected, but the law they collected were not actually applied. So when in the British government, towards the end of the company rule, the British government, that's company court were established, both criminal and civil. Only criminal court could have an Indian judge, no Indian judge in the civil court. And not only that, there was a very clear distinction and a discrimination against the Indians, that Indian judge cannot pass any judgment on the British citizens. So at that time onward, that British rule, that is actually going on, and what now we say the Indian rule passed by the Indian Parliament, they have been already influenced by those ideas, society makes the law, by majority verdict, and all these sorts of ideas are coming down this. So hardly there is any Vedic jurisprudence in operation now. So Vedic here is only now one tradition of law, and that is basically coming both from inside and also the other procedures, that is British law. Now if this is so, then the only one tradition is operative. Then what happened? We have to see what happened since this transformation took place. And if we go from that time onward until today, we have to examine, notice, and study properly with open mind what has happened. Many major events, many major litigations, many major judgments have come which will provide a scant respect for the Vedic tradition, a clear violation of Vedic tradition. Say for example, the oldest of this litigation was Shoti Rahu. Then there was widow remarriage. All these are matter of great litigation and discussion. Then after that, there was Prevention of Child Marriage Act, Sharada Act, and even after that, the permission of MTP operation. All these are against the ideas, beliefs, practices, and ideals of the Vedic society. So Vedic society that way is being neglected and forgotten. If this is so, then what we can do? Should we simply accept it and do nothing else? Or we may try to do something. I think that nothing is gained if we become so pessimist. Now we can try. And I think this center can basically address itself to this very hopefully. But realistically, we must pinpoint and find out what can be done. The first thing that we should try to give up the attitude, the mechanical
way of proceeding. We have to be very careful, very judicious, realistic, and see all that has actually happened. Where exactly we have deviated from the Vedic tradition of jurisprudence, the Vedic sense of justice, we have been deviated from that. And then where these are to be found even now? What are those Vedic episodes? What are the Vedic stories? What are the Vedic events, itihasa, where all these have been enunciated? They have been read with a changed mind, right approach and right understanding. If we do that, then only we can find what actually was the Vedic jurisprudence. We have lost the idea. We have no feeling, we have no knowledge of this Vedic jurisprudence. This has to be. To do that, we have to reorient ourselves, teach ourselves, make a very resolute decision, and in which way we have to proceed. And if we have to proceed, then I personally believe that if we can learn to reread our texts in the Vedic text, Ramayana, Mahabharata, Itihas, Purans, and Dharma Shastra, then we can first discover actually the strength, the three things. What was Vedic jurisprudence? What was the strength of it? What were the weaknesses of it? Having said that, we should try to rectify, reformulate, and reinvent the Vedic jurisprudence, reorient ourselves to it. And in that case only we can find out that reaffirm our own tradition, otherwise there is no hope. The third thing is this. I can give one single example. Many examples are there. Only one example I will cite. In the Ramayana, there is an event when Ramchandra killed Bali. This was rather highlighted to show how unjust was Ramchandra. I request you just to read that portion, very simple, but from the Valmiki Ramayana, and you will see this is one of the best example, highest example, exemplary example of judicial discussion, judicial reasoning, and we are rather just forgotten it, or we deform it, misinterpret it, deliberately misinterpret it to show that it is the failure of justice. If we reread it with the right kind of mind, you will see it is the best ever possible piece of juridical discussion and reasoning. Thank you. Thank you very much, sir. When there is a conflict between the Vyavhar Vidhi and Dharma Vidhi, so Dharma Vidhi should prevail. With these words, I would like to thank you, Professor Mukhopadhyay, for a very nice talk. And now our next speaker is Professor D.P. Verma. Can I ask him some questions? After the session, please. After the session, you can ask the question. Okay, sure. So, next speaker is Professor D.P. Verma. He is a member of Law Commission of India. He is ex-additional director, research and training, National Judicial Academy, India, and he is our own, the former head and dean, faculty of law, BHU. So, I'd like to request Professor D.P. Verma, please. Philosophers, but no law teacher has taken up the issue of Vedic jurisprudence. We have heard justices, judges from Supreme Court and other high courts as well, but their approach have been completely different from the approach of a law teacher who looks at jurisprudence once the subject is being taught to the students. Well, the subject is such which has been equally taken up by the Sanskrit scholars, by philosophers, by the judges, but we must understand that in jurisprudence, one thing is judicial process, how judiciary works,
what is the hierarchy of judiciary and the administration of justice that takes place. This is another thing. And the legal process, the legal system, that is one thing. But here, I would, and my work has become very easy because Professor Mukhopadhyay has stressed many of the issues directly related with the concept of justice in Vedic jurisprudence. However, we must note that he has mentioned that Vidhi Shastra is one thing and Nyaya Shastra is another thing. Besides this, he has also spoken about Vyavahar Shastra and he has mentioned the difficulties with regard to Western jurisprudence. Now, एक विधि के अध्यापक के रूप में मैं इस विषय को इस प्रकार लेता हूं कि जब न्याय की अवधारणा की पर मैं बात करना चाह रहा हूं तो न्याय के विषय में जो न्यायविद हैं, जो विधिविद हैं, उन्होंने न्याय की संकल्पना किस प्रकार से की। मैं न्याय की प्रक्रिया पर जाना नहीं चाहता कि कोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है और व्यवहार कैसे वर्क करता है। हम जानना चाहते हैं कि न्याय का अर्थ क्या है। न्याय के अर्थ को जिस प्रकार पश्चिमी राष्ट्र के विद्वानों ने अपने ढंग से इसका निर्वचन किया, एज विदिक अपने इस चैलेंजेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, यानी ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, इसकी चुनौतियां। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम विधि पढ़ते हैं तो मुझे जो कुछ बताया जाता है, मैं ये समझता हूं कि विधि यही है जो हमें अपने लॉ स्कूल्स में पढ़ाए गए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अंग्रेजों ने आकर के जो विदेशी विचार थे उनका अधिरोपण किया, हमारे ऊपर अधिरोपित कर दिया कि आप विधि के विषय में, न्याय के विषय में इसी रूप में समझिए। यह पहली चीज हुई। दूसरी चीज कि प्राचीन भारतीय विधिक व्यवस्था जो थी उसको तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार सामने रखा गया कि लगा कि जो यह विदेशी विद्वान कह रहे हैं न्याय के विषय में, शायद वही सब कुछ सही है। और दूसरी तीसरी चीज कि भारत में ही नहीं, हम लोगों के ही बीच में नहीं, भारत के बाहर भी इस भारतीय विधि या इस विधि शास्त्र का एक झूठी तस्वीर पेश किया गया और पूरा एक ऐसा माया जाल पूरी दुनिया में मच गया कि जैसे लगा कि इससे बेहतर न्याय की कोई अवधारणा नहीं हो सकती है। और इस रूप में जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसकी एक अवमानना की गई, उसकी एक मानहानि हुई। क्यों हो सकता है, कुछ विद्वान ये भी कह सकते हैं कि शायद इन विदेशी विद्वानों को में अज्ञानता रही हो वैदिक विधि शास्त्र के, शायद इसलिए उन्होंने कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यह चीज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो इसका आभास कर चुके थे, उसे दबाने की कोशिश की, जिसके कारण यह अंग्रेजों का जो आधिपत्य है, साम्राज्यवाद है, यह इस उपनिवेश में यह हमेशा कायम रहे। इस संदर्भ में जो न्याय की संकल्पना विदेशी राष्ट्रों ने दी, यह वेस्टर्न जो अप्रोच है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण है, यह अपने आप में बड़ा संकीर्ण है। यह कैसे संकीर्ण है मैं इसको आगे बताऊंगा। लेकिन इस जो चुनौती आई है, इस चुनौती के विरोध में हमारे पास कहने को क्या है, हम कौन से शस्त्र को लेकर के चल सकते हैं, किन विचारों को अपने सामने रख सकते हैं, यह एक अलग महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सर्वप्रथम सबसे ऊपर हमें रखना होगा अपने सनातन धर्म को, और सनातन धर्म की पृष्ठभूमि को जब मजबूत किया जाएगा तो अपने आप इस चुनौती का एक जवाब मिल जाएगा। दूसरी चीज कि ये प्राचीन भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, इनको भी बड़े जोरदार ढंग से विश्व पटल पर रखना है, इसकी आवाज को बुलंद करना है, तभी हम भारतीय विधि शास्त्र के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो वैदिक विधि शास्त्र है, इसकी एक सांस्कृतिक पहचान है, इसकी एक सभ्यतागत पहचान है। संस्कृति और सभ्यता को हटा करके भारतीय वैदिक विधि शास्त्र को हम सही रूप में शायद नहीं समझ पाएंगे। या हम यूं इस प्रकार कहें कि संपूर्ण समाज में जो भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति न्याय है। और इस प्रकार
जब हम एक वैदिक दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं न्याय के ऊपर, तो इसका दृष्टिकोण हमारा बहुत ही विस्तृत, बड़ा ही व्यापक, बड़ा ही विशाल दिखाई देता है। अब आइए मूल प्रश्न क्या है। इन मूल प्रश्नों को प्रोफेसर गंगोपाध्याय जी ने भी रखने की कोशिश की है। मैं उन्हीं चीजों को चंद शब्दों में सामने रख रहा हूं कि जब पश्चिमी अवधारणा पर हम जाते हैं तो हमारा ध्यान जाता है न्याय की परिभाषा क्या है, न्याय की क्या परिभाषा दी गई है। और पश्चिमी विद्वानों ने ग्रीक काल से लेकर के आज तक न्याय को परिभाषित कर रहे हैं। ये एक बात। दूसरी चीज, हमने जो अपने इस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक रखा है वो आइडिया एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन वैदिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब शब्द आया आइडिया एंड कंसेप्ट। ये दो शब्द हमने क्यों रखे? अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी आप देखेंगे तो कंसेप्ट का अर्थ है आइडिया, और आइडिया का अर्थ में जाएंगे तो आइडिया का भी अर्थ है कंसेप्ट। तो आखिर जब आइडिया और कंसेप्ट है तो इन दो शब्दों का मैंने इस्तेमाल क्यों किया? वो कारण ये, मैं अंग्रेजी शब्दकोश नहीं, ये हिंदी या वैदिक शब्दकोश को मैं लेकर के चलता हूं, तो वहां पर यह आइडिया और संकल्पना, यह दो चीज है। संकल्पना एक दार्शनिक है, दार्शनिक इसका स्वरूप है, और जो विचार है वह व्यावहारिक है। न्याय का एक व्यावहारिक पक्ष है, न्याय का एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक दार्शनिक पक्ष है, और यह दोनों पक्ष न्याय में अति महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में पश्चिमी विद्वानों ने कभी विचार नहीं किया। और इसी कारण मैंने इस प्रेजेंटेशन का यह शीर्षक रखा, आइडिया एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। दूसरी तीसरी चीज हो जाती है कि यह न्याय की प्राप्ति कैसे संभव है। न्याय की प्राप्ति के लिए हमें व्यावहारिक पक्ष पर जाना पड़ेगा, और दूसरी चीज कि न्याय का उद्देश्य क्या है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी विद्वानों ने न्याय के विषय में विभिन्न सिद्धांत हमको दिए हैं, और यह विभिन्न सिद्धांत का जिक्र संक्षेप में मैं आगे करूंगा। लेकिन एक चीज यह है कि इन न्याय का वर्गीकरण किया पश्चिमी विद्वानों ने। कुछ ने कहा यह वितरणात्मक न्याय है, कुछ ने कहा प्रक्रियात्मक न्याय होती है, किसी ने कहा दंडात्मक न्याय होती है, किसी ने कहा पुनर्स्थापनात्मक न्याय होती है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेस्टोरेटिव जस्टिस, कई तरह के नाम दिए गए। प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी ने लीगल जस्टिस का नाम लिया, मोरल जस्टिस का नाम लिया, मैं और आगे आपको नाम लेता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, बहुत तरह की जस्टिस का नाम आ रहा है। लेकिन हम इन सब न्याय की जो अवधारणा है इनको अलग छोड़ करके मैं यही आ रहा हूं कि न्याय की एक अवधारणा विधि के जगत में क्या है और क्या होनी चाहिए, इसके स्वरूप को हम अच्छी तरह बेहतर ढंग से समझें। अब यहां हम आते हैं इटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी शब्द व्युत्पत्ति का दृष्टिकोण। इस शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण में जैसा हमने दिखाया है, एक तरह है पश्चिमी परंपरा, दूसरी है धर्म की परंपरा, और तीसरी है न्याय की परंपरा। जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, जो पश्चिमी की परंपरा है, उसमें यह शब्द न्याय आया है कहां से? लैटिन शब्द जस्ट, यह जस्ट शब्द से यह जस्ट, इसी को आगे अंग्रेजों ने जस्टिस बनाया और इसी से यह न्याय की संकल्पना आई। और ग्रीस और यूनान में और रोम में जब यह चीज आई तो इसका जो स्वरूप था वो मेटाफिजिकल था, पारलौकिक था, या विवेक पर आधारित था। और इसके अतिरिक्त जो मानव चरित्र है, मानव चरित्र के जो नैतिक गुण हैं, उन चीजों को ध्यान केंद्रित करते हुए विद्वानों ने न्याय की परिभाषा दी, न्याय को बताया। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने इसे जोड़ दिया मनुष्य के विवेक से। यह हमारी अंतर्दृष्टि और ये अंतर्दृष्टि है जिससे हम न्याय के विषय में जान सकते हैं, उचित और अनुचित का ज्ञान कर सकते हैं। इसके बाद अरस्तु जब इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो न्याय की कल्पना के साथ जोड़ देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और यह एक इस वितरणात्मक न्याय की संकल्पना अरस्तु हमारे सामने कर देते हैं। इसके बाद संत ऑगस्टाइन जब वो न्याय की संकल्पना करते हैं तो वो बताते हैं जो मनुष्य को मिलना चाहिए वास्तव में, जो उसका उसको अवश्य ही मिलना चाहिए, वही न्याय है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
और आगे चलकर थॉमस एक्विनास ने न्याय को परिभाषित किया, न्याय वह है जो अन्याय के विपरीत है। यानी अपने अपने ढंग से न्याय की परिभाषा दी गई। बाद में आधुनिक काल में आकर के पश्चिमी विद्वानों ने राजनीतिक समाज की गुणवत्ता को देखते हुए न्याय को परिभाषित किया। उसमें 3 नाम प्रमुख आते हैं। पहला है इमैनुअल कांट का, और इमैनुअल कांट राजनीतिक स्थिति को देखते हुए न्याय को परिभाषित करता है कि स्वतंत्रता और समानता यह व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसी में न्याय है, और इस तब तक दूसरे को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए जब तक यह स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वह विचलित नहीं करता है, खंडित नहीं करने की कोशिश करता है। यानी उस समय की जो राजनीतिक समाज की व्यवस्था थी उसको देखते हुए इमैनुअल कांट ने न्याय की अवधारणा हमारे सामने रखी। दूसरी बात आती है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो हमारे सामने कहते हैं, उनका सिद्धांत है फेयरनेस का, निष्पक्षता का, और वो यह कहते हैं असमान जो हैं, असमान को भी समान चीज दे करके उन्हें ऊपर उठाइए, और वह उस सामाजिक स्थिति को देखते हुए वह न्याय की एक संकल्पना हमारे सामने रखते हैं। इसके बाद अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स ने पुस्तक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन ने एक पुस्तक लिखी आइडिया ऑफ जस्टिस, और आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन ने जॉन रॉल्स के सारे सिद्धांतों को चकनाचूर कर दिया, और उसने कहा क्या किस निष्पक्षता की बात करते हैं न्याय के लिए? न्याय के लिए वो निष्पक्षता नहीं हुए है जो असमानता और समानता के बीच की खाई को दूर करना। वो ये अमर्त्य सेन कहते हैं भूख, बेरोजगार, बुरा स्वास्थ्य, ये सब चीज लोगों को मिलना चाहिए। इससे अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, और अमर्त्य सेन ने दूसरी दिशा में न्याय की संकल्पना रख दी। अब इसके बाद अब हम आते हैं 2 संकल्पना पर, एक धर्म की संकल्पना, धर्म की परंपरा और न्याय की परंपरा। धर्म की परंपरा जो है वो संस्कृत की ध्री धातु से निकला, जिसे हम धारण करते हैं। और क्या हम धारण करते हैं? यह लौकिक और यह ब्रह्मांडीय, यह जगत है, जो क्रियाकलाप है, जो कुछ हो रहा है, इन सब चीजों को धारण यह करता है। इसका धर्म का एक बड़ा ही व्यापक अर्थ है। धर्म को जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है रिलीजन, धर्म का यह अनुवाद अंग्रेजी में रिलीजन सही है ही नहीं, क्योंकि यह इतना व्यापक है, क्योंकि इसको अगर हम भारतीय समाज में इसे परिभाषित करने की कोशिश करें तो यह एक निरर्थक होगा। पश्चिमी देशों ने निरर्थक रूप में न्याय को परिभाषित करने की कोशिश की है। हमारी परिभाषा निरर्थक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। कहीं यह विधि के रूप में दिखाई देती है, कभी यह न्याय के रूप में दिखाई देती है, कभी यह कर्तव्य के रूप में दिखाई देती है, कभी यह सदाचार के रूप में दिखाई देती है, कभी यह नैतिकता के रूप में दिखाई देती है, कभी यह नीतिगत आचार के रूप में दिखाई देती है। इतना विशाल स्वरूप है। और एक तो महानारायण उपनिषद के 70वें और 71वें प्रकरण में लिखा गया, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इसका अर्थ क्या है? यहां पर धर्म का अर्थ लिया गया विधि से। लॉ सस्टेन्स द एंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इस विधि के अनुसार चल रहा है। और विधि क्या है? धर्म है। धर्म का अर्थ ही विधि है। यह इस प्रकार की बात हमें अब यहां देखने को मिलती। यहां पर हमें इसमें नैतिकता की बात और न्याय की बात भी मिलती। दूसरी चीज जो अन्य चीज है कि विधि और धर्म बिल्कुल अलग चीज है ही नहीं वैदिक विधि शास्त्र में। इंग्लैंड में जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने विधि और धर्म को पृथक कर दिया। एक ने सिद्धांत दिया थ्योरी ऑफ प्योर लॉ, शुद्ध विधि का सिद्धांत, और शुद्ध विधि का सिद्धांत देते देते उन्होंने नैतिकता को इसके विधि के क्षेत्र से बाहर कर दिया कि नैतिकता को बाहर करोगे, आध्यात्म को बाहर करोगे तो विधि का शुद्ध स्वरूप दिखाई देगा। और ऑस्टिन का जो सिद्धांत था, वह बेंथम का सिद्धांत, वह शुद्ध विधि का था। विधि शुद्ध कैसे है? उसमें से अन्य चीजों को निकाल दो। लेकिन इसी के बाद जब हैंस केल्सन दूसरे विद्वान आते हैं तो उन्होंने थ्योरी ऑफ प्योर लॉ नहीं दिया, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया, यानी विधि का शुद्ध सिद्धांत। और इस प्रकार इनमें आपस में यह टकराव होते रहे। और विधि और धर्म एक ही चीज है, यह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। यह चीज हमें धर्मशास्त्र में देखने को मिलती है, स्मृति में देखने को मिलती है, अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार न्याय और धर्म यह एक दूसरे के पूरक हैं।
एक दूसरे को पृथक नहीं किए जा सकते। यह एक दूसरे से इस कदर मिले हुए हैं जैसे दूध और पानी को पृथक नहीं किया जा सकता। विधि में न्याय को हम अलग नहीं हटा सकते, न्याय में हम विधि को अलग हटा करके नहीं देख सकते। इस प्रकार यह न्याय जो है, यह इसमें नैतिकता का एक अलग खंड विद्यमान है जिसे अनुरूपता प्रदान करती है विधि। अब आइए तीसरे चीज पर मैं आता हूं, न्याय की परंपरा। न्याय की परंपरा के विषय में मैं ये कहता हूं, यह न्याय शब्द भी संस्कृत के नी धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया। और सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया, इसमें यह जानना आवश्यक है कि यह न्याय शब्द संस्कृत में बहुत पुराना शब्द है, लेकिन इसके साथ ही साथ न्याय विद्या और तर्क भाषा उतना पुराना शब्द नहीं। न्याय कोश यह बतलाता है कि किस प्रकार न्याय के द्वारा एक अंतर्निहित अर्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक कोश में धर्म ही न्याय है, जिसके विषय में तैत्तिरीय संहिता में लिखा गया और ब्राह्मणाज में लिखा गया। न्याय एक ऐसी चीज है जो उचित और अनुचित का ज्ञान है, और उचित और अनुचित का ज्ञान प्रमाण के पदार्थ के अनुसार होता है। यह प्रमाण के पदार्थ का अनुसार, मैं इन चीजों को मैं आगे स्पष्ट करना चाहूंगा, इस पर मैं विशेष तौर पर बल दूंगा, क्योंकि न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्याय दर्शन द्वारा अपनाई गई है, जिसमें प्रमाण आधारित तर्क के द्वारा हम इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। अब यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर अभी तक किसी ने पहले से नहीं बताया कि प्रमाण आधारित तत्व के द्वारा यह न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये जस्टिस, जिसमें न्याय में तर्क का की एक भूमिका है, जिस पर प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी ने ध्यान आकर्षित किया ही। मनुस्मृति में बताया गया है, यस तर्केनानुसंधते स धर्मम वेद नेतरः, अर्थात जो तर्क शास्त्र के द्वारा अन्वेषण किया गया है वही धर्म है। यानी धर्म क्या है? धर्म एक ऐसी चीज है जिसका अन्वेषण किया जाना है तर्क शास्त्र के द्वारा। अगर तर्क शास्त्र के द्वारा अनुसंधित है तो वह धर्म है, अगर तर्क शास्त्र के द्वारा अनुसंधित नहीं है तो वह धर्म नहीं है। तर्क का इतना महत्व धर्म में दिया गया। ये तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक है निगमनात्मक तर्क और दूसरा है आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क क्या है? यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक फल को काटते हैं तो उसमें बीज नजर आता है। अगर आता है कि जितने भी चीजों में बीज निकलता है वह सभी फल है। यह एक डिडक्टिव लॉजिक है, एक निगमनात्मक तर्क है। दूसरा आगमनात्मक तर्क। यह आगमनात्मक तर्क जरा कठिन है। वह यह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे एक पक्षी अपने चोंच से दाना चुग रही है। हम तर्क निकालते हैं कि अगर एक पक्षी अपने चोंच से दाना चुग रही है तो जितने भी प्राणी चोंच से दाना चुगते हैं वे सभी पक्षी हैं। यह एक डिडक्ट हो जाता है और इस प्रकार के लॉजिक ये दो प्रकार के चलते हैं। वात्सायन ने आगे चल के कहा है, प्रत्यक्षादि प्रमाणार्थ परीक्षणम न्याय, यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा किसी पदार्थ का परीक्षण ही न्याय है। यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा किसी पदार्थ का जो परीक्षण किया जाता है वही न्याय है वात्सायन के अनुसार। न्याय शास्त्र कहता है, अविज्ञात तत्वे अर्थ कारणोपपत्ति तस् तत्व ज्ञानार्थ मुह स्तर्क, यानी किसी अज्ञात तत्व के विषय में जो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए युक्त विचार किया गया है वही तर्क है। और ये इन चीजों पर काफी दिमाग लगाने की जरूरत है, तभी ये सारी चीजें समझ में आती है कि यह न्याय दर्शन बतलाता है कि सत्य को तर्क के आधार पर स्थापित करने की एक प्रक्रिया है और यह तर्क को भ्रम और कुतर्क से बचाने की चेष्टा करता है।
सत्य को स्थापित करता है, सत्य पर आधिपत्य स्थापित करता है। यानी तर्क को इतना महत्व क्यों दिया गया? अब इसके बाद हम और आगे जब बढ़ते हैं तो वहां नेक्स्ट हमको दिखाई देता है प्रमाण के यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण क्या है? लॉ के स्टूडेंट समझते हैं साक्ष्य, एविडेंस। प्रमाण होना चाहिए। यह प्रमाण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक विधि शास्त्र में, और पूरा वैदिक विधि शास्त्र इसी प्रमाण के चारों ओर घूमता नजर आता है। यह प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है और इसी प्रमाण के द्वारा ही न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। न्याय की संकल्पना है न्याय को प्राप्त करना, और न्याय को हम प्राप्त कर सकते हैं प्रमाण के द्वारा ही। क्योंकि अब ये प्रमाण, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रमाण के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जितना दुर्लभ चिंतन भारतीय समाज में ऋषि मुनियों ने किया है, वैसा उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और 3 शब्द हमारे सामने आते हैं, प्रमा यानी सम्यक ज्ञान, दूसरा है प्रमाण यानी साधन, और तीसरा है प्रामाण्य यानी ज्ञान की व्यावहारिकता। अब सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक अज्ञान, जो प्रमा को पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, वह प्रमाण के द्वारा। प्रमाण एक साधन है, एक मेथड है जिसके द्वारा हम इसे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि न्याय जब देने की कोशिश की जाती है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सत्य क्या है। चाहे वह न्यायाधीश हो या राजा हो या कोई हो, वह जानना चाहता है कि मैं सत्य क्या है और सत्य तक पहुंचा कैसे जाए। और इसमें सत्य में पहुंचने के लिए यह जो साधन है, इस पर अधिक मंथन की जरूरत है। और इस पर गौतम ने न्याय सूत्र में इस प्रमाण को अधिक महत्व दिया, और वहां पर उन्होंने प्रमाण को प्रमेय के ऊपर स्थान दिया है। प्रमाण एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा हम सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उचित और अनुचित का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, व्यावहारिक और अव्यावहारिक का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो न्याय की प्राप्ति के लिए सत्य और असत्य के अंतर को समझना आवश्यक, उचित और अनुचित का अंतर समझना आवश्यक, व्यावहारिक और अव्यावहारिक का अंतर समझना आवश्यक। न्याय कैसे मिलेगा? जब तक इन चीजों के अंतर को स्पष्ट न किया जाए, और सिर्फ यह एक ही चीज के द्वारा हो सकता है, वह है प्रमाण। और पूरा वैदिक विधि शास्त्र इसी न्याय के चारों ओर घूमता है। यहां पर हमको न्याय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, हम भी बात नहीं कर रहे, यहां विधिक व्यवस्था की हम बात नहीं कर रहे। न्याय किस प्रकार, न्याय की जो संकल्पना है, इसका जो एक विचार है, हम उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी न्याय का एक वस्तुनिष्ठ, न्याय की वस्तुनिष्ठ प्राप्ति प्रमाण के बिना संभव ही नहीं हो सकती। यह प्रमाण, 6 प्रकार के प्रमाण को मैं मुख्य रूप से आपके सामने ला करके रखा हूं। ऐसे तो प्रमाण की संख्या बहुत है जो प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी ने बताया है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको रखा चार्वाक ने। चार्वाक ने कहा प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह अति महत्वपूर्ण है। बाद में इस प्रमाण के साथ एक और प्रमाण जोड़ा गया, वो बौद्ध ने जोड़ा, अनुमान। यानी हम जो अनुमान कर सकते हैं और उस अनुमान के द्वारा हम उस अनुमान को भी उसमें लगाते हैं इन्फरेंस। उसके बाद सांख्य योग ने शब्द प्रमाण को रखा है, और शब्द प्रमाण जो लिखित है या अलिखित है, उन शब्द प्रमाण का भी महत्ता है न्याय की दृष्टि से। इसके बाद प्रभाकर ने, अर्थापत्ति, भट्ट मीमांसक और शंकर वेदांती ने अनुपलब्धि की बात कही है। इसके बाद नेक्स्ट प्राचीन न्याय और नवीन न्याय, नव्य न्याय। अब इनके ऊपर मैं अंतर अभी इस पर बताने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अंत में मैं एक बिंदु पर आ रहा हूं कि ये तो वैदिक विधि शास्त्र है, आजकल यह कैसे प्रयुक्त हो सकता है, कैसे लागू किया जाए। इसमें हम एक चीज ये कहना चाहते हैं कि जहां धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं उसमें अगर कोई सुनिश्चित नियम नहीं बताए गए हैं तो वहां पर अतिदेश का सिद्धांत लागू किया जा सकता है बदली हुई परिस्थिति में, और इसका विचार हमें मीमांसा में देखने को मिलता है। मनु याज्ञवल्क्य भी कहते हैं कि जब एक संवेदना के द्वारा कोई समस्या आती है तो धर्म उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करता है।
समाज में सब कुछ पहले बहुत अच्छा था, जब क्रोध आया, लोभ आया, ईर्ष्या आई, तो समाज में संतुलन बिगड़ने लगा और धर्म ने मानव जीवन को अनुशासित करने का प्रयास किया। भीष्म पितामह ने भी महाभारत के शांति पर्व में बतलाया कि जब इस प्रकार की समस्या खराब हुई समाज में, तो त्रिवर्ण के सिद्धांत स्थापित किया गया, धर्म अर्थ काम, और इन तीनों को व्यवहारिक रूप से लागू करने की आवश्यकता है और इसीलिए राज्य की आवश्यकता भी। और अंत में मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा। एक तो जो विधि के विद्यार्थी हैं उन्होंने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस, जो आंग्ल विधि से आया है। ये जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्सेंस का प्रिंसिपल यह आता है कि जहां पर इसको एनालॉजी से लिया गया है, समानता से, कि अगर कोई निश्चित विधि नहीं है तो उस समस्या का निवारण कैसे किया जाएगा, तो एनालॉजी का प्रयोग करके हम उस समस्या का समाधान यह पाश्चात्य जगत करता रहा है। वैदिक लॉ विधि को भी इसी एनालॉजी के साथ जोड़कर अनुदेश के सिद्धांत के द्वारा हम आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस पर पैटर्न ने अपनी टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में इस चीज पर लिखा है और इसके साथ ही साथ 1909 में जस्टिस चंद्रा वर्कर ने कल गावड़ा तवनप्पा बनाम सोमप्पा वाद में इस चीज को बतलाया कि यद्यपि वैदिक विधि शास्त्र में सभी प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन विधि विद्वानों ने सभी प्रकार के नियमों को नहीं बता पाए जो कि एक नई व्यवस्था में आ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए एनालॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, अनुदेश का प्रयोग किया जा सकता है जो मीमांसा में होती है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि वेद तो मूल वेद ही है और इस वेद में जो मूल वेद है, इसके अतिरिक्त धर्म के बहुत सारे अर्थ इसमें दिए गए हैं और यह संभव है कि धर्म ग्रंथों में अन्य प्रकार की बातें मिली। जब यहां कहीं विरोधाभास होता है तो इस विरोधाभास में जो हमारे पास बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि वहां पर वेद को ही प्रमुखता दी जानी है, श्रुति को ही प्रमुखता दी जानी है। और दूसरी तरफ एक चीज जो आज के विद्वान जानते हैं कि हमारे देश में विधि जब बनती है, हमारे संसद जो विधि को बनाती है, उस विधि को न्यायपालिका कहती है, रद्द कर देती है इस आधार पर कि यह संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। तो इसी प्रकार आज भी वह विधि जो हमारे वेद के प्रतिकूल है उसे भी निरस्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान को वैदिक न्याय व्यवस्था थी उसको बहुत ही डैमेज किया, उसकी अवमानना की, क्योंकि जो हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था है, जो वैदिक न्याय व्यवस्था है, वो उसका मूल जो तत्व था वो था यतो धर्मा ततो जया। तो इस प्रकार हम प्रोफेसर डीपी वर्मा के व्याख्यान से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। मैं अब अपने आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर नेक्स्ट इमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर राजा राम शुक्ला जी, प्लीज प्रेजेंट योर टॉक। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सर्वादौ सर्वविद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदाम्बां प्रणमामि। अस्याः तपोभूमेः अधिष्ठात्र देवतं महामनसं मालवीयं च प्रणमामि। एवं अत्र उपस्थितान् सर्वान् अपि अभिवाद्य मदीयं वक्तव्यम् अत्र प्रस्तोतुमिच्छामि। सर्वप्रथमम् अहम् आयोजकान् धन्यवादैर्महेतुमिच्छामि। तैः अयम् अत्यन्तम् उपयोगी विषयः चर्चाविषयत्वेन चितः। कथं भारतीया न्यायव्यवस्था विधिशास्त्रं गौतमीयन्यायशास्त्रं च वर्तमानसन्दर्भे न्यायव्यवस्थायाम् उपयोगी भविष्यति इति दिनद्वये अस्माभिः अयं विचारः कर्तव्यः अस्ति। मैं आज अपना वक्तव्य आचार्य वर्मा जी के एक वाक्य से शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जब भी हम ज्ञान और वह परमात्मक ज्ञान को प्राप्त करने का विचार करते हैं, हमारे सामने कुछ विषय आते हैं। वह मुख्य रूप से 4 विषय होते हैं।
एक प्रमाता, एक प्रमेय और एक प्रमाण। प्रमाता अर्थात वह व्यक्ति जिसको वह परमात्मा का ज्ञान होना है। प्रमाण अर्थात वह माध्यम जिनके द्वारा परमात्मा का ज्ञान की उत्पत्ति होनी है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है जिसे हम प्रमेय कहते हैं, जिस वस्तु का हमें परमात्मा ज्ञान करना होता है और जिसके लिए यह गौतमी न्यायशास्त्र का अवतरण हुआ है। प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय आपने उद्धृत भी किया था। वह अर्थ क्या है, जिस अर्थ तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिस विषय तक पहुंचना चाहते हैं, जिस तथ्य तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसको हम प्रमेय कहते हैं। और भारतीय न्यायशास्त्र की परंपरा के अनुसार संसार में जितने भी वस्तुएं हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वह सब प्रमेय हैं। उनका हमें यथार्थ ज्ञान हो सकता है। यह एक न्यायिकों का क्लेम है कि जो भी वस्तु एग्जिस्टेंस में आई है, सत्ता में आई है, उसका हमें परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मीन्स ऑफ नॉलेज। किन माध्यमों से हम करने चाह रहे हैं। यदि हमारे वो प्रमाण सत्य प्रमाण है, यथार्थ है, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले प्रमाण है, तो निश्चित रूप से उस वस्तु का हमें यथार्थ ज्ञान हो सकता है। आचार्य मुखोपाध्याय जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई कि न्याय शब्द का प्रयोग इस समय दो अर्थों में हो रहा है, एक विधि शास्त्र में और एक गौतमीय न्याय शास्त्र के लिए। यद्यपि आपने वर्मा जी ने भी बताया कि किसी तरह से वैयाकरणिक व्युत्पत्ति के आधार पर हम न्याय इस शब्द को गौतमीय न्याय शास्त्र के रूप में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रचलित मान्यता है कि न्यायः विधिशास्त्रम और न्यायः प्रमाणीय अर्थ परीक्षणम न्यायः, ये दो प्रकार का न्याय है। आज हम केवल, मेरा जो वक्तव्य सीमित रहेगा वो भारतीय जो गौतमीय न्याय की परंपरा है, विशेषकर गंगेशोपाध्याय ने जिस नव्य न्याय का सृजन किया, आविष्कार किया, उस न्याय की जो आर्गुमेंटेशन की पद्धति है वह हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था को कैसे सहायक सिद्ध होगी। आचार्य वर्मा जी ने अनेक प्रमाणों का उल्लेख किया, मैं केवल 2-3 प्रमाणों का उल्लेख करूंगा। मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जिसे आगम प्रमाण भी कहते हैं, श्रुति प्रमाण भी कहते हैं, यह 3 प्रकार के अनुमान, 3 प्रकार के प्रमाण मुख्य रूप से व्यवहार में आते हैं। प्रत्यक्ष सर्वमान्य है, प्रत्यक्ष पर कभी भी संशय नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम इत्यादि इत्यादि, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत सीमित है। संबद्धम वर्तमानंच गृह्यते चक्षुरादिना, जो हमारे इंद्रियों से संबद्ध हो और वर्तमान काल में घटित हो रहा हो उतना मात्र प्रत्यक्ष ग्रहण करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष न दिखने वाले अनेक पदार्थ होते हैं, उनकी सीमा अत्यंत बहुत है और उनको ग्रहण करने के लिए परोक्ष प्रमाणों की व्यवस्था की गई है। अनुमान, शब्द, अन्य जो भी होते हैं। प्रत्यक्ष विषय वस्तु को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं। कुछ होते हैं जो दृष्ट होते हैं, कुछ दर्शनीय होते। दृष्ट अंग्रेजी में अगर कहें तो परसीव्ड एंड परसेप्टेबल या परसीवेबल, जिनका हम ज्ञान कर सकते हैं लेकिन किन्हीं कारण से अभी उनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। वो हुए प्रदर्शन करने योग्यता है उसमें, लेकिन किन्हीं कारण से उनका प्रत्यक्ष अभी नहीं हो रहा है। जिस तरह से इस दीवार के पीछे यदि कोई वस्तु रखी है तो वो परसेप्टेबल है, but it is not being perceived due to different reasons because our eyes are not connected with that. उन वस्तुओं का हमें अनुमान से ज्ञान करना है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सर्वथा अप्रत्यक्ष हैं, वहां जाकर के भी नहीं देख सकते, यहां से भी नहीं देख सकते, उसको नित्य अतीन्द्रिय बोलते हैं। जैसे धर्म, अधर्म, संस्कार, ऐसे कुछ वस्तु होते हैं जिनका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तो प्रत्यक्ष योग्य वस्तुएं प्रत्यक्ष इंद्रियों से भी गृहीत हो सकते हैं और अनुमान से भी गृहीत हो सकते हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय है उनका केवल अनुमान और शब्द से ही गृहीत किया जा सकता है। एक रोचक बात मैं छात्रों के लिए बताना चाहता हूं
कि जिन प्रमाणों से, जिस प्रमाण से प्रत्यक्ष पदार्थ का ग्रहण होता है, वे प्रमाण अपने आप में अप्रत्यक्ष हैं. द इंद्रियास कैन नॉट बी परसीव्ड. जिन प्रमाणों से हमें अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है, वे सारे प्रमाण प्रत्यक्ष हैं. इस बात को सर मैं अनेक बार बोल चुका हूं और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी सोच से बोल रहा हूं. अभी 1-2 दिन पहले मैंने चरक ग्रंथ को देखने का अवसर मिला और उसमें एक लाइन मिली, अल्पम ही प्रत्यक्षम अनल्पम अप्रत्यक्षम अनुमान आगमादि विगृह्यते यैरेव प्रमाणैः प्रत्यक्षम गृह्यते तानि अप्रत्यक्षाणि. दिस इज व्हाट चरक सेज. हमको ये मालूम नहीं था, मुझे लगता था कि मैं अपनी सोच से बोल रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे चरक पढ़ने का अवसर, उस अंश को देखने का अवसर मिला. वहाँ पर उन्होंने ऐसा लिख कर रखा था. और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारी सोच है और वो सब हमारे शास्त्रों में पहले से निहित रहता है. और यहाँ आकर हमें तर्क का सहाय मिलता है. यास्क ने भी कहा है कि एक युग था ऋषियों का जो सब कुछ देख सकते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है. तो फिर आज हमारे सहायक कौन होंगे? तो गुरु ने बताया, तर्कस्ते सहायः भविष्यति. तर्क आपका सहायक होगा और उस तर्कों के आधार पर अध्ययन करते करते, विमर्श करते करते वह व्यक्ति ऋषि बनेगा. तो ऋषि से तर्क से पुनः ऋषि, इस प्रकार का चर्चा होता है. आपने उस बात को उठाया कि नाना वक्तृ प्रवर्तिक, नाना वक्ता होने चाहिए. जहां पर हम विचार करते हैं कम से कम 2 वक्ता अवश्य होने चाहिए, तभी पक्ष प्रतिपक्ष सामने आएंगे. और दोनों वक्ता कैसे होने चाहिए? आचार्य वाचस्पति मिश्र का अत्यंत रमणीय वाक्य है, निश्चितौ हि वादं कुरुतः. दे मस्ट बी कन्फर्म्ड इन देयर ओन साइड्स. उन्हें अपना, एटलीस्ट दे शुड एक्ट लाइक दैट. मधुसूदन सरस्वती ने इस वाक्य को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि अत्र आभिमानिक निश्चयाभिप्रायम, वह ये हमेशा शो करे, ऐसा दिखाता रहे कि यह, इस बात में मैं स्थिर हूं, मेरा यह पक्ष ऐसा ही है. हमारी भारतीय न्याय परंपरा में आप कुछ यहाँ कानून के छात्र, इसके न्याय के छात्र भी यहाँ बैठे हैं, वो लोग उसकी तुलना करते रहे वर्तमान में कैसे डिसीजन आते हैं, कैसी न्याय प्रक्रिया है. 2 प्रकार की वाद शैली हमारे में दिखती है. एक पूर्व पक्षी है, एक उत्तर पक्षी है. ऐसा वाद चलता रहता है. पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं, उसको पूरा मौका दिया जाता है. हमारे शास्त्रों की यह खूबी है कि पूर्व पक्ष को अपने को प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाता है और यदि वह नहीं कर पाता है तो स्वयं उसका सहयोग करते हुए पूर्व पक्ष को पूरा स्ट्रेंथन करते हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक छोटी सी व्याप्ति का एक कॉन्सेप्ट है न्याय में और उसका एक पूर्व पक्ष कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत कॉन्सेप्ट है. पूर्व पक्ष कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए 3-4 हजार पेज लिखे गए. मूल से लेकर करोड़ पत्रों तक का अगर हम की यात्रा करें तो कम से कम इतना साहित्य केवल पूर्व पक्ष को स्थिर करने के लिए, स्थापित करने के लिए लिखा गया है और उसके बाद सिद्धांत का चर्चा होती है. कितनी उदारता हमारे शास्त्रों में है. अब 2 प्रकार का हमें चिंतन मिलते हैं. एक तो एक वक्ता, एक पूर्व पक्षी है और दूसरा पूर्व पक्षी उसके विपरीत आ गया, तो ये पूर्व पक्षी चलता रहता है. कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे सिद्धांत के विपरीत आक्षेप करने वाले अनेक पूर्व पक्षी आ जाते हैं समान प्रकार के. ऐसा बहुत से न्यायालयों में भी ऐसा निर्णय होता है. किसी वाद को लेकर के अनेक एप्लीकेशंस आते हैं तो न्यायाधीश क्या करते हैं, उन एप्लीकेशंस पर, उन आवेदनों पर विचार करते हैं. यदि उन्हें लगता है कि ये सारे विवाद एक समान हैं
तो उसे उन्हें क्लब कर देते हैं और एक वो मुकदमा बन जाता है। हमारे शास्त्रों में एग्जैक्टली यही हुआ है। अगर एक सिद्धांत है और समझ लीजिए न्याय का कोई आत्मनित्यता का सिद्धांत हुआ, आत्मा नित्य, अतिरिक्त आत्मा का एक सिद्धांत है, उसके विपरीत अनेक सिद्धांत आते हैं। कोई कहता है शरीरम आत्मा, कोई कहता है आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियास कैन प्ले द रोल ऑफ आत्मा, कोई कहता है क्षणिक विज्ञानम आत्मा। अब जिस न्यायाधीश के स्थान पर बैठा हुआ जो आचार्य हमारा है, उसने देखा कि इनमें बहुत कुछ क्या पूरा साम्य है। शरीर में भी वही डिमेरिट है, इंद्रिय में भी वही डिमेरिट है और क्षणिक विज्ञान में भी वही डिमेरिट है जो अंत तक नहीं ले जा रही है, पूरे जन्म तक, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत स्थायी वो नहीं है, या फिर जन्मांतर में भी स्थायी नहीं है। यदि शरीर को मानते हैं वह भी क्षणिक है, इंद्रियां भी नश्वर हैं, क्षणिक विज्ञान तो क्षणिक ही है। तो उन सबको क्लब करके एक ही जवाब दे देता है, एक ही तरह का जवाब दे देते हैं, उपघाते कथम स्मृति और बाल्ये अनुभूतस्य स्थावरे स्वर्णम न स्यात्। यदि ये सब कुछ चेंजेबल चीज को हम आत्मा के स्थान पर मानते हैं, परिवर्तनीय चीज को आत्मा के स्थान पर मानते हैं, तो वो बाल्यकाल का शरीर वृद्धावस्था के शरीर में अंतर होता है, व्यक्ति बदल जाता है, कैसे स्मरण होगा, कैसे बालकों की स्तन्यपान में प्रवृत्ति होगी, इस सब को लेकर के एक में क्लब करके समाधान दिया जाता है। और इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं तेना, एतेना। ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। न्यायशास्त्र के भी कुछ छात्र यहाँ बैठे हैं। तेना, एतेन कह करके, एतेन इदम अपि प्रत्युक्तम, ये हमने एक युक्ति दी है। इस युक्ति के आधार पर यह वर्तमान प्रश्न तो स्थगित होता ही है, निरस्त होता ही है। इसके समान योगक्षेम वाले अन्य आचार्यों के मत भी, अन्य आक्षेपों का भी समाधान इसी से हो जाता है। इसके लिए अतिरिक्त युक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी चर्चा की थी, न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संशयिते। यह विचार की धारा तभी शुरू होती है जब संशय सामने आए, यह सच है कि यह सच है, यह हो सकता है कि यह हो सकता है। जब यह संशय की स्थिति आती है तभी विचार आगे प्रवर्तित होता है। हमारे आचार्य ने कहा है विप्रतिपत्ति ही विचारांगम, विचार का मूल होता है विप्रतिपत्ति। जब तक संशय नहीं होगा तब तक हमारा विचार आगे नहीं बढ़ेगा। और संशय के लिए हमें विमर्श अपेक्षित है। इसलिए निर्णय तक पहुंचने के लिए विमर्श पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय कहा गया है। एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच में युक्तायुक्त चिंतन पूर्वक विमर्श करना और उस विमर्श के आधार पर निर्णय तक पहुंचना, यही हमारा ये निर्णय कहा जाता है। और उस दोष के पूर्व उन दोषों के परिहार के लिए हमें उन प्रमाणों को उपस्थापित करना पड़ता है। आप अनुमान प्रमाण को देखें। अनुमान प्रमाण में कहा गया है कि यदि अनुमान प्रत्यक्ष विरुद्ध हो अथवा शास्त्र विरुद्ध हो, आगम विरुद्ध हो, तो उसे प्रमाण नहीं माना जाता है। अनुमान बहुत प्रबल प्रमाण अवश्य है, लेकिन उसकी कमजोरी है कि किसी अन्य प्रमाणों से उसका विरोध नहीं होना चाहिए, अविरुद्ध होना चाहिए। अन्य प्रमाणैर अविरुद्धमेव अनुमानम प्रवर्तते। लेकिन जब हम विरोध ही के लिए प्रत्यक्ष और आगम को सामने देखते हैं तो प्रत्यक्ष का विरोध थोड़ा दुर्बल हो जाता है। थोड़ा दुर्बल इसलिए कि प्रत्यक्ष में को परीक्षित होना आवश्यक है। परीक्षित होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्यक्ष में दोष की संभावना अधिक रहती है। हम लोग इदम रजतम को भी प्रत्यक्ष करते हैं। सामने सीप रखी है, सीप को क्या बोलते हैं? शेल।
शेल रखी है, उसको इतनी चमकती है, हमें लगता है कि ये तो चांदी है। यह भी एक प्रत्यक्ष है, लेकिन यह प्रत्यक्ष विरोधी नहीं हो सकता है अनुमान का अथवा हमारे शब्द का। लेकिन यदि कोई प्रत्यक्ष परीक्षित हो, जैसे अग्नि उष्ण होती है, यह तो परीक्षित प्रत्यक्ष है। इसके विरुद्ध यदि कोई अनुमान करता है अग्नि अनुष्णः, तो यह अनुमान बाधित हो जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष में दोष की संभावना होने के कारण उसकी परीक्षा की अपेक्षा होती है। अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती कहा है, परीक्षितम प्रत्यक्षम ही प्रबलम भवति उपजीव्यम भवति अनुमानस्य। वह अनुमान का उपजीव्य अवश्य है, लेकिन परीक्षितम एव प्रत्यक्षम भवति। अतएव सन घटः इत्यादि प्रत्यक्षम न मिथ्यात्वागमस्य विरोधी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है। लेकिन जब हम शब्द का विरोध देखते हैं, शब्द का मतलब हमारा यहाँ केवल आगम से है, श्रुति से है। श्रुति में किसी भी प्रकार के विरोध का, किसी भी प्रकार के दोष की संभावना नहीं होती है, अतः उसके परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल यह देखना होता है कि वह वस्तुतः श्रुति है कि नहीं। हम देखते हैं जब भी निर्णय दिए जाते हैं न्यायालय में, निर्णय को सपोर्ट करने के लिए पुराने किसी वाद को कोट किया जाता है। अभी आचार्य जी भी अभी किसी पुराने वाद को कोट कर रहे थे कि इस बनाम इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, एंड दिस बिकम्स द एविडेंस, ये आधार बन जाता है उस निर्णय को देने के लिए। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से अपनाई जा रही है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हो रही थी। प्रत्यक्ष का लक्षण आचार्य ने दिया है कि इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय के सहयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। इंद्रिय सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष का लक्षण कर दिया। अब इसमें एक समस्या आती है। न्यायिकों की एक मान्यता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है। हम सब लोग जानते हैं ईश्वर को सब सर्व विषय प्रत्यक्ष और सर्वदा सर्वकालिक सर्वदेशिक प्रत्यक्ष होता है। उसका प्रत्यक्ष नित्य है। नित्य है तो इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि वह नित्य है, उत्पन्न ही नहीं होगा। अब इस स्थिति को शास्त्रीय भाषा में अव्याप्ति कहते हैं, अनएप्लीकेबिलिटी। यह लक्षण कुछ अंश में अप्लीकेबल हुआ और कुछ अंश में अप्लाई नहीं हो पाया, अव्याप्ति इसको कहते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न आ गया, हम क्या करें। भारतीय न्याय की जो परंपरा है, गौतमी न्याय की परंपरा, उसमें अथवा उसके आधार पर जो भी शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, उसमें दो प्रकार की परंपरा देखते हैं। हम कह देते हैं कि चूंकि ये हमारे सेटअप पे नहीं आ रहा है ईश्वर प्रत्यक्ष, इसलिए यह प्रत्यक्ष इस लक्षण का लक्ष्य ही नहीं है, तो उस ग्रुप से उसको हटा देते हैं। और उस हटाने के पीछे हमारी इच्छा नहीं है, उसके पीछे भी हमारा एक कोई आधार होना चाहिए। क्यों ईश्वर प्रत्यक्ष इस लक्षण का लक्ष्य नहीं है, यह भी सोचना होगा। सिंपली हमारा लक्षण नहीं जा रहा है, हमारा लक्षण समन्वित नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे अलक्ष्य मान लें, यह हमारी भारतीय शास्त्र की परंपरा नहीं है। नहीं तो हम कुछ भी लक्षण बना लें। जैसे जो काली होती है वो गाय होती है, जिसका रंग काला होता है वह गाय होती है, ऐसा कह दे। कोई आपत्ति करेगा कि ये हमारे घर में जो गाय है वो तो सफेद है, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि आप वाला गाय ही नहीं है, वो अलक्ष्य है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहते नहीं है, हम लक्षण को मॉडिफाई करते हैं, उसका हम परिष्कार करते हैं। लेकिन अगर ये कोई आधार मिल जाए कि राजाराम शुक्ला के घर में जो सफेद गाय है वो वस्तुतः गाय नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि आपकी गाय अलक्ष्य है, आपके गाय को गाय नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई आधार मिलना चाहिए। अभी शास्त्रकार ने क्या किया कि ईश्वर प्रत्यक्ष के इस लक्षण का लक्ष्य नहीं है। What is the ground for this?
उन्होंने ग्राउंड दिया सूत्रकार को, जो आदि ऋषि हैं इस शास्त्र के, जिसको आप लोगों की भाषा में सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उसके डिसीजन को आधार बना दिया कि यह डिसीजन उन्होंने देकर रखा है कि ईश्वर प्रत्यक्ष इस कोटि में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने भी लिख कर रखा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्यादि। उन्होंने भी जन्य ज्ञान को ही, जीव के प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष लक्षण का लक्ष्य बनाया है। तो ये आधार मिला। इस तरह के बहुत से ऐसे उदाहरण हम लोग को मिलते हैं। यदि हमें उसका भी संग्रह करना हो तो हम प्रकारांतर से भी लक्षण कर लेते हैं। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जहां पर अभी विरोध की चर्चा हो रही थी, आचार्य मुखोपाध्याय जी ने कहा कि दो प्रमाणों में आपस में टकराव हो तो क्या हो, हमें देखना होगा वे दो प्रमाण समबल हैं कि नहीं। समबल होता है तो प्रतिपक्ष की स्थिति आती है, कुछ निर्णय नहीं हो पाता है। दो स्थिति शास्त्र में, हमारे न्याय शास्त्र में इस तरह की परिस्थिति आने पर जो दो प्रमाण आपस में टकराहट होती है, तो दो स्थितियों पर हमारे आचार्य ने अपनी सहमति दी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो तटस्थ व्यक्ति है, हमारे जैसा है, जो नहीं जानता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। एक कहता है आत्मा सत्य है, दूसरा कहता है आत्मा असत्य है, और दोनों की युक्तियां समान हैं। अगर समान बल वाली हैं तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता है। एक यह मान्यता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसे संशय हो जाता है, आत्मा सत्य अस्ति वा न वा, इस प्रकार का संशय होता है। दो प्रकार की हमारे पास मान्यताएं हैं। लेकिन इस विरोध के परिहार में हमें क्या करना पड़ेगा? मीमांसा शास्त्र ने दो रास्ता बताया। यदि ये समान बल वाले हैं तो अगर इनका समान बल वालों का अगर विरोध हो रहा हो तो संकोच विकल्प, संकोच और विकल्प की दो व्यवस्था की गई है। संकोच करना मतलब आप अभी चर्चा कर रहे थे कि प्राणी मात्र की हिंसा न करना एक शास्त्र कहता है, दूसरा शास्त्र करता है कि आतिताइयों का वध करना चाहिए। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, ये भी एक शास्त्र है। माहिंस्यात् सर्वभूतानि, यह भी शास्त्र है। और दोनों का विरोध हो गया और दोनों समान बल है, दोनों श्रुति है। अब क्या करेंगे? तो वहां पर उन्होंने संकोच कर दिया कि माहिंस्यात् सर्वभूतानि क्या कहता है कि यह जो विहित हिंसाएं हैं, आतिताइयों की हिंसा है, उसको छोड़ करके हमारी प्रवृत्ति होगी। एक ये रास्ता है। तो जहां पर यह संभावना न हो वहां विकल्प की व्यवस्था की गई है। मतलब ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, दोनों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मीमांसा में बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है षोडशी ग्रहण। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। अतिरात्र नाम का एक याग है, उसमें षोडशी नाम के एक मंत्र का ग्रहण करना है कि नहीं करना है, इस पर विचार हुआ। एक श्रुति कहती है अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, ग्रहण करना चाहिए, कहती है नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। अब यहाँ पर हम संकोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अतिरात्र एकमात्र विषय है। वहां पर व्यापक था, प्राणी मात्र की हिंसा का निषेध किया था और किसी एक व्यक्ति की हिंसा का विधान था, इसलिए हम वहां पर उसका लिमिटेशन कर सकते थे। यहाँ लिमिटेशन के लिए, संकोच के लिए कोई अवसर नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने विकल्प बता दिया कि यह भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो। लेकिन एक स्थिति ये आती है कि अगर आपको कहा जाए कि आप ये कार्य करो तो ये फल मिलेगा, नहीं करोगे तो भी वह फल मिलेगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वो कार्य नहीं करेंगे। बिना किए आप परीक्षा दे लो तो आप पास हो जाओगे। एक और ऑप्शन है कि परीक्षा नहीं भी दोगे तो भी पास हो जाओगे। आप क्या करोगे? नहीं देंगे, क्योंकि नहीं देना सरल है ना। देने में एक रिस्क है कि हो सकता है गलती हो जाए, नहीं देने में तो कोई रिस्क नहीं है। तो फिर कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात्, षोडशी ग्रहणे कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात्। उन्होंने कहा कि यदि वो जो फल है, विहित फल है अतिरात्र का, वो तो मिलेगा, लेकिन यदि आप षोडशी ग्रहण करते हो तो कुछ विशेष फल मिलेगा। इफ यू अपीयर इनटू एग्जामिनेशन यू विल गेट डिस्टिंक्शन। तो आप
ट्राई तो करेंगे ना। तो इस तरह के भी हमारे शास्त्रों में विधान किए गए हैं। और यह जो संकोच और विकल्प है वह स्वीकृत मान्यता का विरोध जहाँ होता है वहाँ पर हम लोग हमारे यहाँ स्वीकृत मान्यता मतलब हमारे आचार्यों द्वारा कोई स्वीकृत मान्यता हो, कोई व्यवस्था हो, उसके विरुद्ध कोई शास्त्र आ गया हो तो हमें उस शास्त्र की व्याख्या करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप अभी किसी न किसी आर्टिकल की व्याख्या करते हैं ना, हमारे माननीय जज लोग व्याख्या करके इसको ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि इस वाक्य का, इस आर्टिकल का यह तात्पर्य है। वो तात्पर्य अवधारण करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक श्रुति है, सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बहुत प्रसिद्ध श्रुति है, आप लोग जानते होंगे। नैयायिक लोग कहते हैं, हमारे गौतमी न्याय शास्त्र वाले कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का आश्रय होता है, जबकि अद्वैत वेदांती कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप होता है। अपना अपना चिंतन है। यह विज्ञानम, यह शब्द आया, विज्ञानम आत्मा, यहाँ पर दोनों के वचन विभक्ति सब समान है। जहाँ वचन विभक्ति लिंग सब समान होता है वहाँ अभेद प्रदर्शित किया जाता है। यह सुंदर पुरुष है, ऐसा कहने पर पुरुष और सुंदर में अभेद प्रतीत होता है। उसी तरह से विज्ञानम आत्मा जब हम कहते हैं तो विज्ञान और आत्मा में अभेद की प्रतीति होती है, जबकि नैयायिक कहते हैं कि आत्मा और विज्ञान एक नहीं है, विज्ञान का आश्रय आत्मा है। अब वह विज्ञानम इस शब्द का अर्थ व्याख्यायित करते हैं, विज्ञानम अस्य अस्ति विज्ञानम, विज्ञान का आश्रय, यह अर्थ करते हैं। और उसके लिए एक आधार देते हैं। आनंदम आगे शब्द आ गया है। विज्ञानम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वह नपुंसकलिंग में चलता है। अब अभेद में करो या भेद में करो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आनंदम यह शब्द तो पुल्लिंग है, आनंदः होना चाहिए था, श्रुति ने आनंदम लिखा है। और आनंदम यह शब्द जब तक आनंद का आश्रय इस अर्थ में न व्याख्यायित किया जाए तब तक वह शुद्ध ही नहीं हो सकता है। ऐसा आधार देकर के हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई थी। आप हेत्वाभास को मैं ये भी पढ़ता रहूं क्या कि हो गया? हाँ ठीक। तो इस तरह से जितने हमारे यहाँ निग्रह स्थान हैं, जितने हेत्वाभास बताए गए हैं, हेत्वाभास में अनेक हेत्वाभासों का वर्णन है। उसमें व्याप्ति और पक्षधर्मता ये दोनों होना आवश्यक है। इन दोनों में से एक भी मिसिंग होता है। हम कभी और चर्चा करेंगे। हमने इसके लिए पावर पॉइंट भी बनाया था लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि हाँ व्यवस्था होगी। आगे कभी हम आपसे चर्चा करेंगे। इस तरह के अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ पर अभी क्रम का बात बता रहे थे तो हमारे अवयव में एक उचितानुपूर्वी बताया गया है कि इसी अनुपूर्वी में हमें रखना है, इसी क्रम में हमें जाना है। यदि कोई निर्णय, कोई वाद आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं तो वो रिफर कर देता है कि आप पहले नीचे की अदालत में जाकर आ जाइए। तो वह एक उचित क्रम की भी व्यवस्था हमारे यहाँ शास्त्रों में है। थोड़ा बैठकर हमें चिंतन करना होगा और इस तरह की संगोष्ठियों में जब हम चर्वण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। और इस जो भारतीय आर्गुमेंटेशन की पद्धति है, ये चर्चा की पद्धति है, उसका यदि हम अध्ययन अपने लॉ विभाग के छात्रों को कराएं तो निश्चित रूप से निर्णय देने में उन्हें सुविधा होगी। नमस्कार। जो भारतीय न्याय व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं उसमें प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण और प्रमेय का यथार्थ ज्ञान संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस सत्र के नेक्स्ट स्पीकर, जो नेक्स्ट वक्ता हैं हमारे श्री रवि कुमार जी, जो ऑल इंडिया संपर्क टीम ऑफ राष्ट्रीय सेवक संघ और संघ प्रचारक जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना व्याख्यान करें। If I speak in Hindi, is it okay? I think everyone would understand Hindi. अच्छा। एक माता जी ने सुबह कहा था, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमें उदाहरण चाहिए, रोल मॉडल्स चाहिए।
तो मैंने सोचा मैं अपना विषय थोड़ा उसी की ओर चलाता हूँ। जहाँ तक मेरे ध्यान में है, भारत छोड़कर भारत के बाहर के देशों में क्या आपके ध्यान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस जज ने स्वयं को मृत्यु दंड दिया है? इज एनीवन अवेयर ऑफ एनी पर्सन आउटसाइड इंडियन बॉर्डर्स हु हैज गिवन डेथ सेंटेंस टू हिमसेल्फ? हाँ, तो यू कैन फाइंड आउट। मैं तमिलनाडु से आता हूँ। प्राचीन काल में, आज से 2000 साल पहले तमिलनाडु में एक राजा था। उसका फेमस वाक्य है, यानो अरसन याने कल्वन। यह कहते हुए स्वयं को उसने मृत्यु दंड दिया। जरा आप इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए किस संदर्भ में, क्यों धर्म की रक्षा के लिए इतनी बड़ी परीक्षा किया था। उस राजा का नाम है, मदुरई से वो राज्य करता था 2000 साल पहले। उसका नाम है पांड्य राजा नेडुंजयन। तमिलनाडु में चोल थे, पांड्य थे, चेर थे, पल्लव राजा थे, जिन्होंने अपना विस्तार श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, बहुत सारे देशों में नहीं किया। इन सब देशों में दिखने वाले कुछ प्रभाव आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा भारत से हटकर है, लेकिन भारतीयों की सभ्यता, उसमें से कुछ उदाहरण दूंगा। दूसरा, एक व्यक्ति एक महिला के सम्मान के लिए, वो राजा ने स्वयं के हाथ को काटने का दंड दिया। यह भी तमिलनाडु की घटना, आज से 2000 साल पहले की घटना है। तो धर्म को कितना वो लोग मानते थे, इसका उदाहरण है 2300 साल पहले और एक राजा, चोल राजा, उसने जो न्याय दिया, उसका जो बेटा है वीदी विडंगन, युद्ध जीतने के बाद जो राजा था, अपनी सेना लेकर वापस लौटा तो उस लोग चारों ओर खड़े थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे कि छोटा सा लड़का, अभी आने वाला जो राजा बनेगा, वो जीत कर आया है। ऐसे समय पर शोर के कारण एक बछड़ा उसके बीच में घुस गया और किसी सैनिक के कारण वो उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये लोग रथ पे आ रहे थे। तो उसकी जो माँ है, गाय को न्याय प्रदान करने के लिए, और क्योंकि यही तो सब सरदार था अपना, इनका बेटा, तो एल्लाड़न नाम का वो चोल राजा ने अपने बेटे को नीचे रखकर उसके ऊपर रथ चलाकर उसको मृत्यु दंड दिया। और उसके बाद उस राजा का नाम एल्लाड़न से बदल करके मनु नीधि चोड़न ये नाम बन गया है। तमिलनाडु के इतिहास में बहुत जगह पर उनके स्टैच्यूज, प्रतिमा देखने को मिलती है। तो न्याय के लिए आपको एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमने जो जो यहाँ बात किया, उसके लिए हर प्रांत में, भारत के सभी जगह पर आपको उदाहरण मिलेंगे। बोले कि प्राचीन काल में तो मिल जाएंगे, आज क्या है? तो दूसरा वो एक दो उदाहरण बताता हूँ। 1996 से लेकर 2007, 11 वर्ष तक टाडा कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था कि बॉम्बे में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, लगभग 300 लोग मारे गए, 600 लोग घायल हुए, उसको न्याय देने के लिए न्यायमूर्ति उस समय थे प्रद्युम्न डी कोडे। नाम सुना होगा, अपने सामने हुआ है। प्रद्युम्न कोडे 11 साल सीरियस ऑफेंस था, इतने सारे लोगों को, इसमें कई लोगों को उन्होंने मृत्यु दंड भी दिया, कई लोगों को आजीवन कारावास सब दिया है। 11 वर्ष में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। इसके बीच में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनके माताजी का स्वर्गवास हुआ। बाथरूम में स्नान करते समय ये भी गिर गए, इनको चोट लगी, लेकिन छुट्टी नहीं लिया और पूरे न्याय देने के लिए वादी प्रतिवादी के सारे वाक्यों को सुनकर उनको भी मृत्यु दंड की बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि इसमें विदेशी लोग भी शामिल थे। दुबई से फ़ोन आ रहा है, पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, तो भी उन्होंने पूरा कोर्ट केस किया था। दूसरा एक 1975 में भारत में आपात स्थिति लगी थी।
भारत के बहुत सारे विरोधी दल के नेताओं को जेल में रखा था। मोरारजी देसाई को रखा, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी को रखा। उस समय एक न्यायमूर्ति, नाम बताइए उनका, उन्होंने बताया कि 1 लाख लोगों को बिना मुकदमा चलाए आपने जेल में रखा है। इट इज़ टोटली अगेंस्ट, उस समय एक नया कानून लाया था MISA, फैंटास्टिक, जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना ने बोला कि ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। वे कुछ ही महीनों में चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन इस कारण से बने नहीं। लेकिन आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए ये वो थे। अब आपको हम तमिल में 2000 साल पहले बहुत प्राचीन एक संत ने कहा था, यादुम ऊरे यावरुम केलीर। उसका सरल अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। आज हम G20 में वो स्लोगन लिया है, वन अर्थ वन फैमिली। तो इसमें से तो जो सिद्धांत आपको उत्तर भारत में दिखाई देगा वही तमिलनाडु में भी दिखता है। 2 अलग देश नहीं हो सकता है, उसके लिए मैंने बताया। नो, बिकॉज I have been hearing from the morning. I thought I will answer some of those questions. इसलिए मैं थोड़ा सा ये भी बता रहा हूँ, but slides are also there on all these. Some of these are new topics. तो आज के संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम के yesterday, day before yesterday, today's news I am telling you. कुछ दिन पूर्व ही तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया, हजारों की संख्या में लोग मर गए। तुर्की सारे मुस्लिम देशों का सरदार बनना चाहता है, खलीफा बनना चाहता है। 56 मुस्लिम देश है। किसी भी मुस्लिम देश उनको मदद करने के पहले भारत सरकार ने वहाँ में मदद दे दिया है। आज का न्यूज़ ये है, यानी पेपर में आज है तो कल हुआ होगा, कि जो टीम वहाँ उनको मदद करने के लिए गई, उन्होंने उस मलबे से एक छोटी सी लड़की को भी जीवंत निकाला है। तो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है। इसी समय बर्मा में, ब्रह्मदेश में, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं, वहाँ बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है। भारत सरकार ने वहाँ भी एक टीम भेजा है, वहाँ काम कर रहे हैं। कोविड के समय बहुत सारे देशों में संकट हुआ, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, सब जगह पर हमने भोजन, खाने के पदार्थ, अन्न सब भेजकर उनको मदद किया है। इससे अच्छा उदाहरण दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। हम जानते हैं कि सरदार पटेल जब केस लड़ रहे थे तब उनको एक टेलीग्राम आया। क्या था उसमें? उनकी पत्नी स्वर्गवास हो गई है, तो भी वो लड़ते रहे, क्योंकि मुझे मेरा क्लाइंट का धर्म निभाना है। पिछले महीने में हमारे प्रधानमंत्री को भी एक संदेश आया। क्या आया? उनके माताजी स्वर्गवास हो गई है। उन्होंने तुरंत बताया कि एक भी सरकारी काम स्थगित नहीं होगा, मेरे भी कार्यक्रम स्थगित नहीं होंगे। डायरेक्टली मैं नहीं पहुंच सकूंगा, मैं इंटरनेट के माध्यम से सब जगह पर रहूंगा। उन्होंने अंतिम दर्शन के लिए भी अपने गांव गए और बाकी सब जगह पर इंटरनेट के माध्यम से भी काम किया। और सभी मंत्रियों को बताया कि किसी ने भी आज छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका और देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह भी एक विशेष घटना हमारे देश में आज भी है। तो कोविड के समय कम से कम 100 देशों को हमने वैक्सीन दिया। इस प्रकार से हमने लोगों को मदद किया है, ये भी दिखता है। हमारे यहाँ वाराणसी के बारे में 1-2 बातें बताता हूँ। कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। 200 साल पहले यहाँ एक नवाब राज्य करता था और बहुत ही क्रूर था, बहुत ही घमंडी था। तमिलनाडु से एक संत आए 200 साल पहले, नाम नहीं बताऊंगा, आपने ढूंढना चाहिए। और उस जो भी नवाब था उसका घमंड को चूर करके इसी वाराणसी में उससे माफ़ी मंगवाया। ज़रा आप देखिए, वाराणसी में अगर होता है तो हमारे उसके लिए प्रतिमा यहाँ बन सकती है क्या। और एक उदाहरण वाराणसी के संदर्भ में,
1960 के दशक में 3 लोग वाराणसी में एकत्र आए। उसके पूर्व भारत के किसी भी मंदिर के पास पूरा वेद ग्रंथ नहीं था। हम वैदिक सम्मेलन में आए हैं। वेद के कुछ कुछ पार्ट, कोई उपनिषद के बारे में बताएगा, कोई थोड़ा सा इधर का उधर का बताएगा, लेकिन संपूर्ण वेद कंपाइलेशन नहीं था। तो 3 लोग एकत्र आए। एक का नाम है स्वामी गंगेश्वरानंदा। नाम सुना है किसी ने? स्वामी गंगेश्वरानंद दिव्यांग थे, नेत्रहीन। वह जन्म से ही उनको दृष्टि नहीं थी, लेकिन दिव्य दृष्टि होने के कारण जो भी कान में सुनते हैं उसको हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। कंप्यूटर जैसे उनका मेमोरी था। कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसको तो राम कहते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दूसरे राम थे। दूसरे एक व्यक्ति थे, उनका नाम है दादा साहेब आप्टे। ये भी बहुत बड़े संस्कृत के पंडित, और भारत भर में जितने भी पंडित हैं जिनको थोड़ा भी ज्ञान है, कोई क्रम पाठ है, कोई पद पाठ है, कोई घन पाठी होगा, उन सब लोगों को जाकर मिलकर यहीं वाराणसी में लेकर आए। ये सब लाने के लिए जो खर्चा है बिरला जी ने दिया। तो बिरला जी एक और, दादा साहेब आप्टे एक और कंप्यूटर के जो मेमोरी रखने वाले स्वामी गंगेश्वरानंद, कोई तमिलनाडु से, कोई असम से, कोई पंजाब से आकर बताया, मैं वेद का इतना ही जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ। ये जो जिक्सा पजल है, आपने खेला होगा बचपन में, नहीं तो बच्चे खेलते हैं, इन सब को जोड़कर उसमें से वेद को ढूंढकर निकालना और इस पुस्तक बनाना, ये स्वामी गंगेश्वरानंद किया। और इस वेद पुस्तक लेकर दुनिया भर में वे और दादा साहेब आप्टे गए थे। हमें से कोई लिखेगा कि नहीं इनके ऊपर? एक और नॉर्वे की बात बताता हूँ। वहाँ के भारतीय परिवार के लोग थे, मालूम है? चिल्ड्रन, हाँ, बच्चों की। बच्चों की, करेक्ट, एग्जैक्टली, थैंक यू। आई एम वैलिडेटेड एंड आई एम ऑनर्ड। वहाँ छोटी बच्ची स्कूल में जाती है, दूसरी तीसरी में, तो बच्चों के बीच में बातचीत करते समय उसको होता है कि मैं तो अपने माँ के साथ ही सोती हूँ, और मेरा जो 7 महीने का बच्चा है वो भी मेरे माँ के साथ ही सोता है। ये तो भारतीय परिवार में नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये लोग बन गए नॉर्वे सिटीजन। वहाँ का कानून कहता है कि बच्चे का जन्म के बाद कभी भी माता पिता ने बच्चे के साथ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ का अनुभव ऐसा है कि बच्चों को मार डालते हैं, कंबल लेकर ओढ़ देंगे, और जो बच्चा नहीं चाहिए वो मर जाएगा। बच्चे के साथ बलात्कार करते हैं। जिस घर में असली बाप नहीं है या असली माँ नहीं है, उस बच्चे के ऊपर क्या क्या होता होगा। इसलिए वहाँ बच्चों को आप साथ में नहीं सुला सकते हो। इनको मालूम नहीं था, तो इन्होंने तो धीरे धीरे प्रिंसिपल के पास गया न्यूज़। तो प्रिंसिपल ने बोला कि पुलिस को मैं बताती हूँ। पुलिस आ गए, माता और पिता दोनों को अरेस्ट किया, अलग अलग जेल में डाल दिया। बेटी को भी एक अनाथाश्रम में, और 7 महीने के बच्चे को भी। इतने में इनके जो दादा दादी, इनके नाना नानी है, कम से कम उस बच्चे को हमको दे दो। नहीं, क्योंकि आप भी वही गलती करोगे जो इनके माता पिता ने किया, इसलिए आपको यहाँ रहने के लिए वीज़ा नहीं देंगे, ये बच्चों को आपके पास नहीं देंगे। हमारे विदेश मंत्री उस समय कृष्णा जी थे, उस समय की जो भी मंत्रिमंडल था उसमें, गौड़ा की, और उन्होंने भी बताया कि इन द इंडियन सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड डज नॉट एंड विथ कटिंग द एम्बिलिकल कॉर्ड। उन्होंने बोला कि नहीं चलेगा, हमारे देश में हमारा कानून चलेगा। अब सोचना है कि दुनिया में ऐसे कितने देश में कैसे कैसे कानून बनते हैं, और जिसको आधार लेकर हम अपना देश चलाना चाहते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स आई वांट टू टेल यू अबाउट इराक। सर्टन interesting things have come out in the last 10 years of excavations। उतना ही मैं बताकर छोड़ देता हूँ। इराक में 2010 में एक एक्सकवेशन हुआ, उसमें से पता चला कि 1550 BC, यानी लगभग 3000 साढ़े 3000 साल पहले वहाँ एक हिंदू साम्राज्य था जिसे मित्तानी साम्राज्य कहते हैं। वहाँ के सारे राजाओं के नाम सब आ गए हैं, सुबंधु है, प्रियमेधा है, सारे संस्कृत के नाम है। वहाँ के हुरियन भाषा में उन्होंने
जो लिखा है उसमें सब संस्कृत के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 वगैरह ऐसे बहुत सारे संस्कृत के शब्द है। और उन्होंने कभी भी स्लेवरी नहीं लाया था। वे अग्नि की पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे वगैरह वगैरह। और इन्होंने फेरोज के साथ इजिप्ट के द बैटल ऑफ कडेश, जो यूनाइटेड नेशन के सेंट्रल हॉल में जिस ट्रीटी, वॉर नहीं चाहिए, पीस चाहिए, इसलिए द बैटल ऑफ कडेश, द ओल्डेस्ट अवेलेबल टेस्टिमोनियल ऑन ट्रीटी बिटवीन 2 कंट्रीज जो है वो उनके सेंट्रल हॉल में रखा है। और उसमें युद्ध करने वाला एक पक्ष भारत था। और उन्होंने फेरोज को, रमेशस द सेकेंड, आपने 10 कमांडमेंट्स देखा होगा तो, उसको बताया कि तुम्हारे देश में तुमने यहूदियों को पर अत्याचार करते हुए पिरामिड्स बना रहे हो, इसको बंद करो। उसके कारण वहाँ के जो मोसेस नाम के जो प्रॉफिट थे वे वहाँ से he could escape and come back to his promised land. It is one of the biggest events in the world. एक्सोडस, ये 2nd चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट का। ये सब के पीछे भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम, ये कारणीभूत है। दुनिया में कोई नहीं इसके बारे में चर्चा करता है। आप लोग कुछ कीजिए और ये भी बताइए कि 200 साल पहले इसी वाराणसी में तमिलनाडु से उठकर आकर यहाँ के नवाब का जो घमंड है उसको चूर करने वाला का नाम क्या था। धन्यवाद। ये 200 साल पहले तमिलनाडु से आकर के यहाँ के नवाब का जो घमंड था वो चकनाचूर करने वाले वो व्यक्ति कौन थे। निश्चित रूप से उनका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होना चाहिए। और जैसा एक विषय रखा है कि क्या उनकी हम प्रतिमा बनारस में लगा सकते हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से लगनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये कुछ प्रश्न हैं हमारे ऑडियंस के, तो लेकिन चूंकि सेशन लेट है तो अगर उनकी परमिशन हो तो ये वो प्रश्न चाय के समय पूछ लें हमारे विद्यार्थियों से, जिससे कि हम अगला सेशन टाइम से शुरू कर सकें।